Hello students, welcome to the Gen classes. Today we will learn about the element and the ID selector in CSS. In the last lecture, we saw about the internal CSS, inline CSS and the external CSS. And now we will learn about the element and the ID selector. Firstly, open the Notepad++. You can do the coding in the simple Notepad also, but Notepad++ comes with the more feature. That's why I will use the Notepad++. In the Notepad++, firstly write the HTML and closing HTML. In the HTML, because we will do the coding in the HTML file, CSS coding in the HTML file. That's why I will write the all thing in the HTML file. Then body section open, body section close. In the body section, firstly write the paragraph. Okay, just save this file firstly in the D drive HTML final folder, and in that css3.html, all types save. Okay, now I want the two paragraphs. Okay, I want the two paragraphs. That's why paragraph 1 P and P \P. Okay, in the paragraph tag I will write, if you have any query, then ask in comment box. Okay, in the comment box, now I will write second paragraph. Here we are learning about different ID selector. Okay, ID selector, paragraph complete. So paragraph complete. Okay, now we will write two heading also. H1 \H1. So heading, in the heading I will write CSS tutorial. This is only a लाइनिंग पार्ट, राइट. अपन लोग सिर्फ लिख रहे हैं कि अपन लोग को क्या क्या चाहिए. अपन डिजाइनिंग नहीं कर रहे. वी आर नॉट डूइंग द डिजाइनिंग हियर. ओके, CSS3. In the second line I want element selector and ID selector. Just save this file and run it. Just open the D drive and HTML file final folder, and in that CSS3, just run it. Okay, this one is the heading and this one two paragraphs. Okay, now I want the body as the orange color, so I will write CSS file. Okay, CSS, in the head tag always the CSS style tag is present. So head tag open, head tag close. In the head tag style tag open, style tag close, and in the style tag I will write body. Body is the selector, because which section we have to select for the designing part. I want the body as a designer part now.
because I want the color of the body as orange, so I will write the body part. In that body part I will write background color as a orange, semicolon. Just save this file and run it. Okay, orange color. Now I want a paragraph as a background color. In the paragraph tag, I want the text alignment, background color and the color of text color. Okay, so I will write, we have the two paragraph. Okay, but if I will write paragraph tag background color as the yellow, okay, just save this file and run it. Okay, both paragraphs are becoming in the yellow color. Okay, but I want the first paragraph as the yellow color and the second paragraph as the blue color. Okay, so now I will, this one is the element tag because अपन ने क्या किया है, एलिमेंट लिखा है, बॉडी एज द एलिमेंट लिखा है, उसका ऑरेंज कलर कर दिया है. ओके, यहाँ पे पैराग्राफ लिखा और पैराग्राफ टैग को येलो दिया तो दोनों पैराग्राफ येलो हो गए, बट मुझे एक पैराग्राफ क्या चाहिए, येलो चाहिए, और दूसरा पैराग्राफ क्या चाहिए, ब्लू चाहिए. तो मैं क्या करूंगी, अब एक पैराग्राफ में आईडी लगाऊंगी. दिस वन इज द आईडी टैग. ओके, आईडी इज द एट्रीब्यूट एंड नाउ पैरा वन इज द वैल्यू. ओके, मैंने क्या किया, आईडी सिलेक्ट कर आईडी बना दिया. मीन्स फर्स्ट पैराग्राफ वाले का आईडी क्या बना दिया, पैरा 1 बनाया, और सेकंड वाले पैराग्राफ का, बिकॉज दो पैराग्राफ है इसलिए आईडी, पैराग्राफ का आईडी क्या बना दिया, दोनों के आईडी डिफरेंट रखना, अलग अलग डिफरेंस बताने के लिए. ओके, पैरा 2. ओके, जस्ट सेव दिस फाइल. ओके, अब क्या चाहिए मुझे, पूरा का पूरा पैराग्राफ मुझे येलो नहीं चाहिए. उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे हैश लगाऊंगी, बिकॉज आई वांट टू यूज द आईडी. ओके, हैश लगाऊंगी, और पहले वाले पैराग्राफ का नाम क्या था, पैरा 1, वैल्यू क्या थी, पैरा 1. ओके, पैरा 1 में अब मैं प्रॉपर्टी सेट करूंगी. ठीक है, पैरा 1 का मुझे बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, येलो नहीं चाहिए, मुझे दूसरा कलर चाहिए. तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ब्राउन लिखूंगी, बिकॉज आई वांट दी ब्राउन कलर. ओके, ब्राउन कलर, जस्ट सेव दिस फाइल. सिर्फ पहले वाले पैराग्राफ का ही मुझे ब्राउन कलर चाहिए. ठीक है, तब क्या करेंगे, अपने येलो तो हटा दिया, जस्ट रिफ्रेश दिस. फर्स्ट वाले पैराग्राफ का क्या हुआ, येलो कलर हुआ है. ओके, कंट्रोल प्लस साइन से, ठीक है, ये हो गया ब्राउन कलर. सेकंड वाले पैराग्राफ का कुछ भी कलर नहीं आया, अब मुझे सेकंड वाले पे भी चाहिए. तो मैं क्या करूंगी, सेकंड वाले का आईडी क्या है, पैरा 2 है आईडी. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अगेन हैश साइन यूज करूंगे. हैश साइन कभी भी अपन आईडी के लिए यूज करते हैं. अब पैरा 2 ओपनिंग कर ली, उसके लिए बैकग्राउंड कलर, उसके लिए बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए मुझे, येलो ले रही हूँ मैं. ठीक है, एंटर, सेमीकोलन, एंड जस्ट क्लोज दिस फाइल, कंट्रोल एस. सेकंड वाली पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ का कलर ब्राउन किया, सेकंड वाले पैराग्राफ का कलर क्या किया, येलो किया. ठीक है, जस्ट रन. यानी क्या किया, अगर अपन लोगों को दो पैराग्राफ थे, अब दोनों पैराग्राफ को सेम प्रॉपर्टी ना देते हुए मुझे अगर अलग अलग लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, इसका आईडी बनाऊंगी सबसे पहले, और आईडी बनाने के बाद में हैश टैग से वो आईडीज को क्या करूंगी, यहाँ पे यूज करूंगी. पैरा 1 ये आईडी है पैराग्राफ 1 का, पैरा 2 ये आईडी है पैराग्राफ 2 का. ओके, येलो ब्राउन हो गया, बॉडी का हो गया. अब उसी तरह अब हेडिंग 1 H1 है, H1 को अपन लोगों ने किया. अगर मेरे पास में हेडिंग 2 रहती थी
यानी अब क्या कर रही हूँ मैं, हेडिंग 2 ले रही हूँ, H2। ओके, H2 ओपन हुआ तो H2 को मैं क्लोज करूंगी। ठीक है, अब हेडिंग 2 में मुझे लिखना है दिस इज द न्यू ट्यूटोरियल, दिस इज न्यू ट्यूटोरियल, दिस इज न्यू ट्यूटोरियल, न्यू ट्यूटोरियल, दिस इज न्यू ट्यूटोरियल। और हेडिंग मैंने क्लोज कर दिया। जस्ट सेव दिस फाइल, जस्ट सेव दिस फाइल एंड रन इट। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट वाले हेडिंग का मुझे फर्स्ट वाली हेडिंग क्या चाहिए, अलाइन चाहिए। तो यहाँ पे क्या करूंगी मैं, H1 लिखूंगी। ठीक है, H1 लिखूंगी, H1 ओपनिंग कर ली। अब उसकी क्या चाहिए मुझे, अलाइनमेंट। पहले कलर चाहिए, टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर सेट करने के लिए अपन लोग लेंगे कलर, ओनली कलर लेंगे। बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए बैकग्राउंड कलर येलो लेते थे, बट टेक्स्ट कलर सेट करने के लिए ओनली कलर लेंगे, बिकॉज फॉन्ट का कलर चेंज करना है। फॉन्ट कलर कौन सा चाहिए मुझे, येलो चाहिए। ओके, सेमीकोलन। जस्ट एंटर, सेव दिस फाइल एंड रन इट। ओके, आ गया फर्स्ट। और अब सेकंड वाले को अपन लोग को कलर देना है, तो अपन क्या करेंगे, हेडिंग 2 लेंगे। ठीक है, H2 बिकॉज हेडिंग अलग अलग नेम से रहती है, H1, H2, H3, इसलिए इसके लिए आईडी क्रिएट नहीं किया तो भी चलता है। बट पैराग्राफ का P, जो अपना P टैग रहता है, वो तो सबके लिए कॉमन रहता है। इसलिए P अगर यहाँ पे अपन लोग ने स्टाइलिंग में अगर सिंपल P लेते हैं तो वो पूरे के पूरे पैराग्राफ को अप्लाई करता है। इसीलिए पैराग्राफ टैग के लिए अपन लोग ने क्या किया, आईडी क्रिएट किया। और वो आईडी क्रिएट करने के बाद में अपन लोगों ने क्या किया, अलग अलग प्रॉपर्टी, सेम अलग अलग पैराग्राफ्स के ऊपर अलग अलग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अब हेड 2 के लिए अपन लोगों ने क्या किया है, कलर। अब कलर कौन सा चाहिए उसको, लाइट येलो, लाइट येलो। ओके, सेमीकोलन, जस्ट सेव दिस फाइल एंड रन इट। आ गया लाइट येलो। ओके, अब अगर मुझे ये जो हेडिंग है उसको भी अगर मुझे आईडी बनानी है तो क्या करूंगी मैं, यहाँ पे आऊंगी, यहाँ पे H1 जो टैग है उसका आईडी बनाऊंगी। H1 की आईडी इक्वल्स टू हेड 1 डबल कोट कंप्लीट। और H2 की आईडी बनाऊंगी, H2 की आईडी बनाऊंगी, आईडी इक्वल्स टू हेड 2। ठीक है, जस्ट सेव दिस फाइल। और अब क्या करूंगी यहाँ पे, अब हेड 1 हेड 2 तो बना दिया मैंने, तो इसका अगर मुझे आईडी यूज करना है तो मैं क्या करूंगी, हैशटैग यूज करूंगी। और यहाँ पे क्या लिखूंगी, हेड 1। ठीक है, हेड 1 लिखा, हेड 1 का येलो हो गया। और यहाँ पे क्या करूंगी मैं, हैश साइन यूज करूंगी। और यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, हेड 2। ठीक है, जस्ट सेव दिस फाइल एंड रन इट। ओके, देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन दी आउटपुट, बिकॉज अपन लोग ने H1 H2 को अलग अलग भी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो, बिकॉज इट हैज अ डिफरेंट नेम। ओके, नाउ आई वांट दी इन द बॉडी टैग, अपन लोग ने ऑरेंज किया था ना, नाउ आई वांट दैट बॉडी सेक्शन text align. Okay, text align as a center, just save this file, sorry, हाँ, सेंटर अलाइनमेंट। अपन लोग ने जो टेक्स्ट दिख रहा है बॉडी में उसको क्या किया, सेंटर किया। जस्ट सेव दिस फाइल एंड रन इट। ओके, जस्ट रिफ्रेश दिस फाइल एंड क्या हुआ, जो जितना भी बॉडी सेक्शन में था वो पूरा का पूरा क्या हुआ, जितना भी बॉडी सेक्शन में था वो पूरा का पूरा मिडल में आ गया। ठीक है, सेंटर में आ गया। अब क्या चाहिए मुझे, अब बैकग्राउंड कलर हो गया, फॉन्ट साइज बढ़ानी थी मुझे। ठीक है, अब फॉन्ट साइज अगर बढ़ानी है आपको तो क्या करोगे आप लोग, फॉन्ट साइज
colon 20 semicolon. Just save this file and run it. Just refresh it. Okay, font size increase हो गई. अगर आप लोगों को अब पैराग्राफ में, अब देखो मुझे पूरा का पूरा सेंटर में नहीं चाहिए, मुझे पैराग्राफ जो है वो लेफ्ट साइड में चाहिए. तो मैं क्या करूंगी, पैराग्राफ 1 की टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट करूंगी. ओके, टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसे रहेगी, टेक्स्ट अलाइन, ओके. अब मुझे जो पैराग्राफ 1 था वो मुझे पूरा का पूरा सेंटर में नहीं चाहिए, मुझे पैराग्राफ 1 लेफ्ट में चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, लेफ्ट टैग यूज कर रही हूँ. ओके, जस्ट एंटर. ओके, बैकग्राउंड कलर मुझे ब्राउन चाहिए और कलर मुझे क्या चाहिए, उसका येलो कलर चाहिए था. ठीक है, मैंने जो भी कलर सेट किया है, फॉन्ट कलर अगर मुझे सेट करना है तो मैं क्या करूंगी, सिंपल में येलो टैग लूंगी, सिंपल में कलर टैग लूंगी. कलर only color is used for the font color. Okay, font yellow. Enter. Okay, save this file and run it. okay. F5 से रिफ्रेश करना. आ गया, ये लेफ्ट साइड में आ गया. ठीक है, ये लेफ्ट साइड में आ गया. अब मुझे ये भी लेफ्ट साइड में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अगेन मैं पैराग्राफ 2 में अलाइन करूंगी. टेक्स्ट अलाइन कोलन लेफ्ट साइड सेमीकोलन. ओके, जस्ट सेव दिस फाइल एंड अगेन रन इट. आ गया लेफ्ट साइड में. अब क्या चाहिए मुझे, जो फॉन्ट है वो मुझे ब्लू कलर में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, फॉन्ट कलर करना है तो क्या करोगे आप लोग, सिर्फ सिंपल कलर लिखोगे, सिंपल कलर कोलन ब्लू. ओके, सेमीकोलन, सेव दिस फाइल एंड रन इट. F5 आ गया. ठीक है, हेडिंग 1 हो गई, हेडिंग 2 हो गया. बस ऐसा होता है आप लोग का. क्या हुआ, ये हुआ आपका, ये जो बॉडी आप लोग यूज कर रहे हो ये एलिमेंट सिलेक्टर हो गया पूरा का पूरा. और आप लोग ये क्या हुआ है, जहां पे हैश साइन आया वहां क्या होता है, आप लोग का आईडी सिलेक्टर होता है. और आप लोग आईडी कैसे सिलेक्ट करते हो, वो टैग के अंदर आईडी नाम का एट्रीब्यूट लेना और आईडी का नेम लेना, मीन्स वैल्यू लेना, सेट करके आप लोग क्या कर सकते हो, एक ही पैराग्राफ, एक सेम तरह के 2 पैराग्राफ अगर लेते हो तो अलग अलग प्रॉपर्टी अगर सेट करनी होंगी तो आप लोग क्या करोगे, आईडी सिलेक्ट करोगे. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द क्लास टाइप. ओके, क्लास सिलेक्टर देखेंगे. थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर. थैंक यू.